हाय एवरीवन ମୁଁ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ନଲେଜ ଗାଇଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର କିଛି କ୍ଲାସକୁ କଭର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସିରିଜକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ ବାହାରିଛି। ଏଇ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସବୁ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ନଲେଜ ଗାଇଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନଲେଜ ଗାଇଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠ ଉପରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି A computer is an electronic device that accepts data, input or processes it according to instruction and produces useful information। ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ୍ ଯେ କ'ଣ କରେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଡାଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବ, ପ୍ରୋସେସିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦଉ, ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟା ଦଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଇନପୁଟ କହିବା। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବ, ଯୋଉଟା ଦେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଉଟପୁଟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେବା ତାହା ହେଉଛି ଇନପୁଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ଆମକୁ ଦେବ ତାହା ହେଉଛି ଆଉଟପୁଟ। The word computer is derived from Greek or Latin language। ଗ୍ରୀକ୍ or ଲାଟିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି, ଯାହାର ମିନିଂ ହେଉଛି କାଲକୁଲେଟ। ତାପରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କିଛି ଜିନିଷ। ଆମର ଫାଦର ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲ୍ସ ବ୍ୟାବେଜ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ସେ ଚାର୍ଲ୍ସ ବ୍ୟାବେଜ ଆଉ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ସବୁ, ଡିଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ସେଭଳି ମଦର ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ ନା ଆଡା ଲଭଲେସ୍ ଅର୍ ଗର୍ଜିନା। ଆଡା ଲଭଲେସ୍ ଯେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କୁହାଯାଏ। ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କହିଲେ ଆଡା ଲଭଲେସ୍ ଆସିବେ। ମଦର ଅଫ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କୁହାଯାଏ, ମଦର ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ମଦର ଅଫ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ମଦର ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏସବୁ କିଏ ନା ଆଡା ଲଭଲେସ୍, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲ୍ସ ବ୍ୟାବେଜଙ୍କର ୱାଇଫ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ପରଫର୍ମ କରିଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେସନ କରେ। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେସନରେ ଆମର ପ୍ଲସ୍, ମାଇନସ୍, ଇଣ୍ଟୁ ଏବଂ ହରଣ ଆସିଥାଏ। ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ ସେମିତି ଇକ୍ୱାଲ, ଗ୍ରେଟର, ଲେସ୍, ଗ୍ରେଟର ଇକ୍ୱାଲ, ଲେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଏସବୁ ଆସେ। ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ, ଆମେ ଇନପୁଟ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା ପରେ ଆଉଟପୁଟ ବାହାରିବ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିଥିବ ଡାଟାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ। ତାହେଲେ ଇନପୁଟରୁ ବାହାରିବ ଆଉଟପୁଟ, ଡାଟା ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଇନଫର୍ମେସନ। ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାର୍କ କ'ଣ, ଇନପୁଟକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବ, ତାପରେ ଆଉଟପୁଟ ଦେବ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କାମ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ପିଡ କଥା। ପରଫର୍ମ ମିଲିୟନ ଅଫ ଅପରେସନ ପର ସେକେଣ୍ଡ। ପର ସେକେଣ୍ଡକୁ ସେ ମିଲିୟନ ଅପରେସନ କରିପାରିବ। ଆକୁରେସି ତାମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଅଫ କରେକ୍ସନ, ତାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ ଠିକ ଦେବା ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଠିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବ। ତାପରେ ଷ୍ଟୋରେଜ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଡାଟା। ଡିଲିଜେନ୍ସ ନେଭର ଗେଟ୍ସ ଟାୟାର୍ଡ, ସେ କେବେ କ'ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ଭର୍ସାଟିଲିଟି, କ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ୱାର୍କ ଅଟୋମେଟିକାଲି ୱାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଥରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ କରେ। ଏସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି। ତାପରେ ବେସିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆମେ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଇନପୁଟ ୟୁନିଟ୍। ଇନପୁଟରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ, ତାହେଲେ କିବୋର୍ଡ, ମାଉସ, ସ୍କାନର, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଏସବୁ ହେବ ଆମର ଇନପୁଟ। ତାପରେ ଅଛି ମୋର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବା ସିପିୟୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସିପିୟୁରେ ଆମର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆରିଥମେଟିକ ଲଜିକ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟର।
ALU বা एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ର କାମ ହେଉଛି ଯେ କି perform calculation ଯେ calculation କରେ ସେଟା ହେଉଛି arithmetic logic unit control unit ର କାମ ହେଉଛି control all operation ସେ operation କୁ ସବୁ operation କୁ control କରିବ register ଯୋଉଟା ହେଉଛି small fast memory inside CPU ତାହେଲେ ଆମର CPU ଭିତରେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିଛି କଣ କଣ ALU বা arithmetic logic unit कंट्रोल यूनिट एवं रेजिस्टर ए तीन टा जिनस हमर सीपीयू भितर रहिछि ए सब होछि हमर इनपुट डिवाइस ताले आमे जहा सहाय्य रे दउछे तथ्यडा सेडा होछि हमर इनपुट डिवाइस ताले कीबोर्ड माउस स्कैनर ए सब सहाय्य रे आमे तथ्य दउजे कंप्यूटर को सेति पई ए गुडी को हबो हमर सब इनपुट डिवाइस नेक्स्ट रोछि मेमोरी यूनिट रे कोन हमर आसीबो जे कि डाटा एवं इंस्ट्रक्शन को स्टोर करिवो आउटपुट जहाँ सहाय्य आमे डाटा को पाउछे हेडा हबो हमर आउटपुट जेमति कि एग्जांपल मु कहबी मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर ए सब हबो मोर आउटपुट यूनिट मॉनिटर सहाय्य आमे छवि को देखुजे तो एडा में तथ्यडा को पाउछे इंस्ट्रक्शन पाउछे सेति पय हबो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस एवं प्रिंटर कोन प्रिंटर सहाय्य आमे कंप्यूटर ठु जिनसडा आणुजे सेति पय ताहा मध्ये हबो आउटपुट यूनिट से भली स्पीकर जो साउंड क्रिएट करूची आमे स्पीकर सहाय्य कोन दउची कि तथ्य दउनी किंतु आमे इन्फॉर्मेशन पाई पाउचे सेति पय स्पीकर मध्ये हबो हमर आउटपुट यूनिट नेक्स्ट अछि मोर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर कथा हार्डवेयर रे जब हम कंप्यूटर सब फिजिकल पार्ट जेमति कि एग्जांपल मु देबी कीबोर्ड सीपीयू मॉनिटर ए सब हबो हमर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन हवा सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हार्डवेयर को जे हार्डवेयर को जे कंट्रोल करिवो से होची सॉफ्टवेयर जेमति हम कहबा विंडोज एमएस वर्ड एमएस एक्सेल एमएस विंडोज ए सब जबा हमर गोटे सॉफ्टवेयर ताहले एडवांटेजेस कोन रहिछि सेव्स टाइम ए टाइम को हमर सेव करिवो एफिशिएंसी इंक्रीज करिवो ह्यूमन एरर मध्ये रिड्यूस करिवो ए सब होची हम कंप्यूटर रो एडवांटेजेस रहिछि नेक्स्ट अछि मेमोरी ऑफ कंप्यूटर गोटे होछि हमर प्राइमरी मेमोरी आ गोटे होछि हमर सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी रैम आ रोम जीवो रैम रो फुल फॉर्म कोन रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम रो होछि रीड ओनली मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी जोटा हेडा होछि हमर वोलेटाइल रोम डा होछि नॉन वोलेटाइल ए सब हम डिटेल्स रे पढिबा जेतले मु आपन मानको पढेबी इनपुट आउटपुट डिवाइस सब कंप्यूटर रो पार्ट को गोटी गोटी करिकि सेते बेले हमें रैम रोम कथा पढिबा खाली आपन माने बे मन रखंतो हमर प्राइमरी मेमोरी रे के आसीबे रैम एवं रोम सेकेंडरी मेमोरी रे हार्ड डिस्क एसएसडी पेन ड्राइव सीडी डीवीडी ए सब हो जाबर कोन सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी जो रैम हला हेडा होची वोलेटाइल रोम जोटा सेडा हबो हमरा नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर आ किछि पॉइंट को हमें मन रखिबा एग्जाम पॉइंट कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी सिस्टम रे कंप्यूटर कार्य करे सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बा सीपीयू होची कंप्यूटर रो ब्रेन रैम होची गोटे वोलेटाइल मेमोरी एएलयू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ताले एएलयू जोटा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से बोथ अरिथमेटिक एवं लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करथाय एबे हमें पढ़िबा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन ताले कंप्यूटर हमरे केमिति सृष्टि हेतिला कोन थिला से विषय हमें पढ़िबा प्रथम हमर आसिला अबाकस जहाको प्रथम जहारो इन्वेंटर होची चाइना ताको बाहर करथिला हेडा होची फास्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस तो एग्जाम रे हमको क्वेश्चन पचारिबो फास्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑप्शन देथिबो अबाकस पास्कल लाइन एनालिटिकल इंजन तापर सुपर कंप्यूटर एमती ऑप्शन थिबो तो आपण मान को लिखिबा को हबो जे अबाकस बोली तो अबाकस तो होची हमर फास्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जाको चाइना बाहर करथिला तापर आसीथिला हमर नेपियर स्पोन्स जाको बाहर करथिले जॉन नेपियर बुझिला जे कि 0 ରୁ 9 पर्यंत नंबर को होल्ड करथिला तापर आसीथिला हमर पास्कल लाइन को बाहर करथिले ब्लेस पास्कल जोड़ा हेतिला हमर फास्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन बुझिला तो फास्ट कंप्यूटर हेतिला कैलकुलेटिंग डिवाइस थिला जोड़ा हमर अबाकस तापर आसीथिला हमर 0 ରୁ 9 पर्यंत नंबर होल्ड हेतिला माने ताठार धीरे धीरे टिके टिके डेवलप हेजी जोटा बाहर करथिले जॉन नेपियर
तापर ब्लेस पास्कल बाहर करथिले पास्कलाइन जोटा थिला फर्स्ट मेकानिकल एडिंग मशीन। तापर आसीथिला हमर जैक्वार्ड लूम को हमर बाहर करथिले जोसेफ मेरिन जैक्वार्ड जोटा थिला हमर फर्स्ट मेकानिकल लूम। तापर हमर आसीथिला एनालिटिकल इंजिन एमान कठारो टिके डेवलप थिला जहा को बाहर करथिले चार्ल्स बेबेज जोटा हमर हितला फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। हेदि पय चार्ल्स बेबेज को हमर फादर ऑफ कंप्यूटर मध्ये कहा जाय थाए। एनालिटिकल इंजिन पर आमर आसिला टैबुलेटिंग मशीन को के बाहर करथिले ना हर्मैन होलेरिथ जोटा थिला फर्स्ट इलेक्ट्रो मेकानिकल मशीन। तमाने इलेक्ट्रिक रे काम करथिला मेकानिक दीटा जाक गुण रहिथिला कार टैबुलेटिंग मशीन रो। तमाने जो आमर बाहर करथिले चार्ल्स बेबेज ताठारु ये टिके डेवलप थिला। तापर आमर आसिला मार्क 1 जहा को बाहर करथिले के हॉवर्ड आइकेन। डाटा कैन बी एंटर्ड मैनुअली तमाने टिके डेवलप काठारु टैबुलेटिंग मशीन थारु जोधेर के हमर डाटा एंटर करी हला मैनुअली रे। तापर हमर आसिला एनियाक जहा को बाहर करथिले जेपी एकॉट एंड जेडब्ल्यू मैकले जोटा थिला हमर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर नाम कोन थिला तो हब आंसर एनियाक। सेमती को कंप्यूटर रे प्रथम थर पई डाटा हमर मैनुअली भाव रे एंटर करा जाय परथिला मार्क 1 हबो। सेमती फर्स्ट इलेक्ट्रो मेकानिकल मशीन कोड आस्थिला तो टैबुलेटिंग मशीन हबो। तापर आसिला हमर एडसैक जोटा हमर बाहर करथिले जॉन भन न्यूमन प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी। या पूर्व जेति भी कंप्यूटर बाहर थिला कोदरे स्टोरेज कैपेसिटी नथिला किंतु एडसैक जो प्रथम बाहरला हेदरे किछि स्टोरेज कैपेसिटी रहला। त माने धीरे धीरे कोन होजी कंप्यूटर रो डेवलप हे जाउछि। तापर आसिला हमर यूनिभैक जहा को बाहर करथिले जे क्रिस्पर एकॉट एवं जॉन मैकले फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। यूनिभैक जो बाहरला हेदरा हमर कोन लार्ज अमाउंट रो इनपुट रहिला एवं आउटपुट रहिला त माने सेथिरे डाटा हमें देले एवं से मध्ये हमको इंफॉर्मेशन दे पारला। एडा हला फर्स्ट हमर कोन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थिला। तापर आसिला हमर आईबीएम 650 कंप्यूटर जहा को बाहर करथिला आईबीएम कंपनी। Input output units converting alphabetical and special character to 2-digit decimal code। तामाने IBM कंपनी जो बाहर कला IBM 650 कंप्यूटर जो देरे कि इनपुट किंबा आउटपुट दीटा जाको जो अल्फाबेटिकल एवं स्पेशल कैरेक्टर टा कोदर कन्वर्ट हे परला डेसिमल कोड रे कन्वर्ट हे परला। एटा के बाहर करथिला IBM कंपनी। एतिकी थिला हमर एबे हमें आउथर ताहले ओवरलुक करतबा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को। प्रथम आसिला अबाकस जहार इन्वेंटर होची चाइना जे जोटा थिला हमर फर्स्ट मेकानिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। तापर आसिला नेपियर स्पून जहा को बाहर करथिले जॉन नेपियर होल्डिंग नंबर फ्रॉम 0 to 9। तापर आसिला पास्कलाइन जहा को बाहर करथिले ब्लेस पास्कल जोटा थिला हमर फर्स्ट मेकानिकल एडिंग मशीन। तापर आसिला हमर जैक्वार्ड लूम जोटा थिला जोसेफ मेरिन जैक्वार्ड बाहर करथिले फर्स्ट मेकानिकल लूम। तापर आसिला हमर एनालिटिकल इंजिन जहा को बाहर करथिले चार्ल्स बेबेज जोटा हो हमर फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। तापर थिला हमर टैबुलेटिंग मशीन जहा को बाहर करथिले हर्मैन होलेरिथ थिला हमर फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन फर्स्ट इलेक्ट्रो मेकानिकल मशीन। तापर आसिला मार्क 1 तापर एनियाक तापर एडसैक। मार्क 1 बाहर करथिले हॉवर्ड आइकेन जहार जो दरे हमर डाटा को मैनुअली एंटर करा गला। तापर आसिला एनियाक को एकॉट एवं मैकले बाहर करथिले जोटा थिला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तापर आसिला हमर एडसैक जो दरे हमर कि स्टोरेज कैपेसिटी रहिला। तापर हमर आसिला यूनिभैक रो जो इन्वेंटर होछंदी जे क्रिस्पर एकॉट एवं जॉन मैकले जोटा थिला हमर इनपुट दे होथिला अधिक परिमाण आउटपुट मध्ये हमें पाई परथिले। तापर नेक्स्ट हम आसिला IBM 650 जोटा हमर IBM कंपनी बाहर करथिला जोटा हमर डेसिमल कोड रे कन्वर्ट हैला। एतिकी थिला हमर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमें पढिबा जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। प्रथम हमें देखिबा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे हमर 1940 रु 56 मध्ये आसीथिला जहार स्पीड को मिली सेकेंड हिसाब रे हिसाब करा जाय थाए। स्विचिंग डिवाइस बा जोडा हम कहबा हार्डवेयर बुझेला ताला
स्विचिंग डिवाइस आमर थिला वैक्यूम ट्यूब स्टोरेज डिवाइस बा कोदरे स्टोर हेकी रहउथिला ना मैग्नेटिक ड्रम व्यवहार कराउथिला सेतेबेले जार ऑपरेटिंग सिस्टम होची बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को लैंग्वेज रे सेतेबेले लिखा हुए ना मशीन लैंग्वेज मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे को लैंग्वेज व्यवहार होइथिला ना मशीन लैंग्वेज जेमति के एग्जांपल मु कहबी एनियाक यूनिभाक एडभाक एडसैक आईबीएम 701 ये सब होइछि कोन मशीन लैंग्वेज तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे हमें कोन जानिले 1940 रु 56 मध्य एटा डेवलप होइतिला स्पीड होछि मिली सेकेंड हार्डवेयर डिवाइस होछि वैक्यूम ट्यूब स्टोरेज डिवाइस भापर मैग्नेटिक ड्रम की यूज करा जाए कोऑपरेटिंग सिस्टम काम करथिला ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज एग्जांपल हैला एनियाक यूनिभाक एडभाक एडसैक आईबीएम 701 ए सब होछि कोन कंप्यूटर गोटे गोटे ए सब कंप्यूटर आमर आसथिला कोन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे एग्जांपल बुझियला एनियाक यूनिभाक एडभाक आईबीएम 701 ए सब होछि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे एग्जांपल आपण माने याको भल्लो भाबरे मन रखिबे को लैंग्वेज यूज होतला ना मशीन लैंग्वेज स्टोरेज डिवाइस भाबरे मैग्नेटिक ड्रम को यूज करा होतला स्विचिंग डिवाइस भाबरे वैक्यूम ट्यूब को यूज करा जाए तापर हम पढिबा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हमर 1956 रु 63 मध्य डेवलप होइतिला स्पीड ताठू टिके अधिक स्पीड तो माइक्रो सेकेंड थिला तार स्पीड हार्डवेयर डिवाइस भाबरे हमर ट्रांजिस्टर के यूज करा जाय थाए स्टोरेज डिवाइस भाबरे मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी थिला तो एथिर आस्थिला मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम होची टाइम शेयरिंग सिस्टम को लैंग्वेज एथिरे मशीन लैंग्वेज यूज होतला एदिरे किंतु असेंबली लैंग्वेज आसिला एग्जांपल को कंप्यूटर हमर आईबीएम 1401 आईबीएम 7094 सीडीसी 1604 यूनिभाक 1108 सीडीसी 6600 पीडीपी 1 हनीवेल 400 इत्यादि होची हमर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रे एग्जांपल तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ठारो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हमर आउ टिके डेवलप थिला तापर आसिला हमर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जोटा हमर 1964 रु 71 मध्ये रहितिला स्पीड डा नानो सेकेंड स्विचिंग डिवाइस हो हमर इंटीग्रेटेड सर्किट तो ताठार आउ टिके डेवलप एटा हमर इंटीग्रेटेड सर्किट हमर हार्डवेयर भाबरे यूज हैला तापरे स्टोरेज डिवाइस हमर मैग्नेटिक कोर रहिला ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम सिस्टम अनुसार रियल टाइम सिस्टम थिला ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज कोन हाई लेवल लैंग्वेज हमर एटा फर्स्ट हमर हला मशीन लैंग्वेज तापरे असेंबली एथिरे किंतु यूज हला हाई लेवल लैंग्वेज जेमति कि हम कोन कोन कहबा एग्जांपल फोर्टान कोबोल अल्गोल बेसिक पास्कल सी जावा पाइथन ए सब हो हमर थर्ड जनरेशन रो कंप्यूटर लैंग्वेज एग्जांपल हम कोन देखिबा को कंप्यूटर हमर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर IBM 360 IBM 370 ICL 1900 ICL 2900 यूनिभाक 1108 CDC 1700 TDC 316 PDP हनीवेल 6000 ए सब हो हमर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रो एग्जांपल ताहले एथिरे स्टोरेज डिवाइस कोन मैग्नेटिक कोर मन रखिबे कि एथिरे आसिला हमर इंटीग्रेटेड सर्किट नेक्स्ट अच्छी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जहाँ पिको सेकेंड होची तार स्पीड स्विचिंग डिवाइस होची लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बा माइक्रोप्रोसेसर जोटा हमर व्यवहृत होइतिला केबे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर रे स्टोरेज डिवाइस हिसाब रे सेमीकंडक्टर मेमोरी बा व्हिस्टर डिस्क व्यवहार करा जायतिला ऑपरेटिंग सिस्टम थिला टाइम शेयरिंग को लैंग्वेज यूज करा हला ना एसक्यूएल पाइथन जावा जावास्क्रिप्ट सी हाच ए सब हमर व्यवहार करा गला कंप्यूटर लैंग्वेज को कंप्यूटर थिला फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एग्जांपल IBM 4341 DEC 10 स्टार 1000 पफ बा PUP 11 एप्पल 2 ए सब थिला हमर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर रो एग्जांपल तो हमें मन रखिबा एहार स्विचिंग डिवाइस को आउ स्टोरेज डिवाइस को स्विचिंग डिवाइस भाବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର हार्डवेयर डिवाइस भाବରେ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बा माइक्रोप्रोसेसर यूज କରାଗଲା स्टोरेज डिवाइस भाବରେ सेमीकंडक्टर मेमोरी बा व्हिस्टर डिस्क को ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା
एबे देखिबा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जोटा हमर प्रेजेंट टाइम रे यूज करा जाउछि जोटा हमर स्विचिंग डिवाइस अछि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स सर्किट कहदेली सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स एवं तार स्टोरेज डिवाइस पे यूज करा होछि ऑप्टिकल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होछि नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज बा ह्यूमन लैंग्वेज यूज करा जाउछि एग्जांपल हम देखिबा कोकू कंप्यूटर ना एआई यूएलएसआई परम 10,000 सुपर कंप्यूटर स्मार्टफोन टैबलेट लैपटॉप अल्ट्राबुक आम बर्तमान जहाँ जहाँ यूज करछे से सब हो हमर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ताले हम कौन पढ़िले आउ थर कहिदेबी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे हमर स्विचिंग डिवाइस भाबरे वैक्यूम ट्यूब यूज करा गला सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रे ट्रांजिस्टर आसिला थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रे आ टिके डेवलप इंटीग्रेटेड सर्किट आसिला फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर रे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आसिला फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर रे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप आसीथिला ए सब जिनस को हमें मन रखिबा नेक्स्ट अछि हमर कोन ना कंप्यूटर टाइप ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଗ୍ରାମ ଟେ କରିଦେଇଛି कंप्यूटर वर्किंग्स को बेस करके कंप्यूटर तीन प्रकार कौन एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड तापर साइज अनुଯାयी कंप्यूटर चारि प्रकार माइक्रो मिनी मेनफ्रेम सुपर एवं पर्पज अनुसार जेनरल एवं स्पेशल पर्पज दुई प्रकार ताहले वर्किंग अनुଯାयी कंप्यूटर तीन प्रकार कौन एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड साइज अनुसार चारि प्रकार माइक्रो मिनी मेनफ्रेम सुपर तापर पर्पज अनुसार दुई प्रकार जेनरल एवं स्पेशल ताहले हम गोटी गोटी की पढ़िबा प्रथम एनालॉग तापर डिजिटल तापर हाइब्रिड एमते हम पढ़िबा फर्स्ट अछि मोर एनालॉग कंप्यूटर जोटारे कि डील विथ कंटिन्यूअस डाटा जे कंटिन्यू डाटा केवल दिए हेडा हो हमर कंप्यूटर केवल लैपटॉप ए सब को बुझाएनी जहाँ भी हमर डिवाइस यूज होची इलेक्ट्रिकल जे हमको किछ इंफॉर्मेशन बा डाटा दोची से हो कंप्यूटर जेमिति कि हम कहबा टेम्परेचर स्पीड प्रेशर ए सब जे मध्ये हमर सूचना दोची सेडा गोटे एनालॉग कंप्यूटर रे जीवो आउटपुट कोन वैल्यूज शोज इन मीटर डायल्स ग्राफ्स ए सब जिनस हमको जे देखाए हेडा हो गोटे एनालॉग कंप्यूटर एग्जांपल मु जेमति कहबी कौन हम व्यवहार कर जेमति वेहिकल हमर स्पीडोमीटर यूज होची जे कि हमर कहा को मापुची डिस्टेंस को मापुची स्पीडोमीटर हो थर्मोमीटर तापर वेदर फोरकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट ए सब जीवा हमर कोन एनालॉग कंप्यूटर रा एग्जांपल ले नेक्स्ट अछि हमर कोन डिजिटल कंप्यूटर जे कोन यूज बाइनरी नंबर जे बाइनरी नंबर के यूज करूची जो तर बाइनरी नंबर यूज होची हेडा हबो हमर डिजिटल कंप्यूटर जेमते एग्जांपल डेस्कटॉप लैपटॉप बाइक डिजिटल मीटर ए सब हबो डिजिटल कंप्यूटर एग्जांपल आ कोन अछि हमर स्मार्टफोन कैलकुलेटर कोठे यूज होची बैंकिंग एजुकेशन ऑफिशियल वर्क ए सब हमर व्यवहार करा जाउची कोन डिजिटल कंप्यूटर तापर अछि हमर हाइब्रिड कंप्यूटर जे बोथ एनालॉग एवं डिजिटल डिटा जाक जति सोचेबा हेडा हबो हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जांपल जेमते हम कहबा मेडिकल इक्विपमेंट गुडा काम आसे सब हाइब्रिड कंप्यूटर रे जेमते कि एग्जांपल मध्ये भी ईसीजी सीटी स्कैन ए सब जो सब मशीन यूज होज ना से सब जीव गोटे हाइब्रिड कंप्यूटर कोडे कोडे यार व्यवहार आहुरी अछि साइंटिफिक रिसर्च रे व्यवहार करा अछि एयरक्राफ्ट स्पेस रिसर्च सिस्टम रे मध्ये हमर हाइब्रिड कंप्यूटर को यूज करा अछि एबे हमें साइज को देखिबा साइज को देखि के प्रथम आसिला माइक्रो कंप्यूटर जोटा कि लिस्ट पावरफुल स्मॉल साइज सिंगल यूजर जणे व्यवहार करि परिबो स्मॉल साइज एवं लिस्ट पावरफुल मध्ये जेमति कि एग्जांपल मध्ये भी डेस्कटॉप लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन पैमटॉप ए सब जोटा हमें घरे व्यवहार करछे से सब हो जे हमर कोन माइक्रो कंप्यूटर कोडे यूज होजी होम ऑफिस वर्क एजुकेशन ए सब मिनी कंप्यूटर ए सब हो जे हमर कोन माइक्रो कंप्यूटर तापर नेक्स्ट होची हमर कोन ना मिनी कंप्यूटर टा मीडियम साइज रो जोटा फास्टर तो सेटा थिला लोएस्ट एटा टिके फास्टर जोटा जे सपोर्ट मल्टीपल यूजर किछि यूजर को एटा सपोर्ट करे मिनी कंप्यूटर टा कोठे कोठे व्यवहार होय ताठारो टिके बड़ हो जे हमर मिनी कंप्यूटर कोठे कोठे व्यवहार हो जे स्मॉल इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी रिसर्च लैबोरेटरी ए सब जगह हमर मिनी कंप्यूटर यूज हो जे एग्जांपल आईबीएम 17 डीईसी पीडीपी 11 एचपी 9000 ए सब हो जे हमर मिनी कंप्यूटर रे एग्जांपल तापर आसला मेनफ्रेम कंप्यूटर जोटा कि इंटरनल मेमोरी स्टोरेज टा बहुत अधिक सपोर्ट 100 और 1000 ऑफ यूजर एट ए टाइम ताहले एट ए टाइम
100 କିମ୍ବା 1000 ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ କାମ କରିପାରିବେ। କୋଉଠି କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବ୍ୟାଙ୍କ, ରେଲୱେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଲାର୍ଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆମର ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାମାନେ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆହୁରି ବଡ଼ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଅଛି ଆମର IBM 370, IBM S/900, ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ 1110 ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ହାଇ ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍ପିଡ୍ ମେଜର୍ଡ ଇନ୍ ଫ୍ଲପ୍ସ। ତାହେଲେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ତାମାନେ ଅଧିକ ପଇସା, ଯାହାର ସ୍ପିଡକୁ କୋଉଥିରେ ଆମର ମପାଯାଏ ନା ସ୍ପିଡକୁ ମପାଯିବ ଫ୍ଲପ୍ସରେ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଅଛି କୋଉଥିରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱେଦର ଫରକାଷ୍ଟିଂ, ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଇସ୍ରୋ, ନାସା ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ, ମିଲିଟାରୀ ଏଜେନ୍ସି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଆମର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଇନଭେଣ୍ଟର କିଏ? ସେମର କ୍ରେ। ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଏହାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସେଇମର କ୍ରେ। ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉଟା ଆମର ତାହାର ନାଁ ହଉଛି CDC 6600। CDC ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡାଟା କର୍ପୋରେସନ 6600, ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ୱାର୍ଲଡ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସବୁଠାରୁ ସ୍ପିଡ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନାମ ହଉଛି କଣ? EI କ୍ୟାପିଟାଲ। ବୁଝିଗଲା? ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ପଢିବା, ଆମ ଭାରତର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଥା। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନାଁ ହଉଛି ପରମ 8000, ଯୋଉଟା CDAC କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ କରାଯାଇଥିଲା। CDAC ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫର ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ। CDAC ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ପରମ 8000। ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ ନା ବିଜୟ ଭଟ୍ଟାକର ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫାଦର। ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଭଲପଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରଥମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ତାର ନାଁ ଥିଲା କଣ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନାଁ ହଉଛି ପରମ ସିଦ୍ଧି AI। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଏବଂ ମିହିର ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ୱେଦର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉଛି ଆମର କଣ? ପରମ 8000, ଯୋଉଟା ପରମ 8000 ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଡେଭଲପ କରିଥିଲା CDAC। ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ ବିଜୟ ଭଟ୍ଟାକର ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ତାର ନାଁ ହେଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନାଁ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସବୁଠାରୁ ସ୍ପିଡ ଚାଲୁଥିବା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାଁ ହେଲା ପରମ ସିଦ୍ଧି AI। ୱେଦର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଏବଂ ମିହିରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି ପେଟାଫ୍ଲପ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସେଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟ୍ରପିକାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି IITM ପୁନେ। ତ ଏଟା କୋଉଠି ସେଟଅପ୍ ହେଇଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟ୍ରପିକାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ବା IITM ପୁନେରେ। ଏକା ହଉଛି ଆମର ଡେଭଲପଡ ବାଇ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ। ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା କୋଉ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଭଲପ କରାଯାଇଛି ନା ଏକା। ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ 1952ରେ। କୋଉଠାରେ ନା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କୋଲକାତା ଠାରେ। ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଥିଲା 1991ରେ। କୋଉଠି? ପୁନେ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଅବଜରଭେଟୋରିରେ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟଲ, ପ୍ରଥମ ଭାରତ ତିଆରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। କେବେ? 1986 ମସିହାରେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ପର୍ପୋଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ? ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାସ୍କ। ତାମାନେ ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଟାସ୍କ କରିବ ସେଟା ହଉଛି ଆମର କଣ? ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯୋଉଟା ଆମର ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ। ଏହାର ହଉଛି ନେଚର, କୋଉଠି ୟୁଜ କରାଯାଏ? ଟାଇପିଂ, ଡକୁମେଣ୍ଟ, କାଲକୁଲେସନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ରାଉଜିଂ, ଏଜୁକେସନ, ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜରେ, ସେଟା ଯିବ ଆମର ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଅଛି କଣ କଣ? ଡେସ୍କଟପ, ଲ୍ୟାପଟପ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ।
ତାପରେ ଅଛି ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାସ୍କ। ଯିଏ ଗୋଟେ କେବଳ ଟାସ୍କ କରିବ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାସ୍କ ସେଟା ହବ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କ କରିବ ସେଟା ହଉଛି ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏଇଟା କଣ ନେଚର କଣ ନା ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ନୁହଁ। କୋଉଠି ୟୁଜ ହଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ, ମିସାଇଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ୱାସିଂ ମେସିନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ୟୁଜ ହଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ୱାସିଂ ମେସିନ କଥା, ୱାସିଂ ମେସିନ ର କାମ ଯାହା ଯାହା ସେ କେବଳ ସେଇ କାମ କରିବ। ଆମେ ୱାସିଂ ମେସିନ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଅଲଗା ଡାଟା କିଛି ଦେଇପାରିବା କି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତ ସ୍ପେଶିଆଲ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଟା ୟୁଜ ହଉଥିବାରୁ ସେଟା ଯିବ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିଛି କୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କାଲକୁଲେସନ। ତାହେଲେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେ ସବୁ ହବ ଆମର କଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ। ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ବା ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଇ ନଲେଜ ଗାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। Thank you so much for your love, support and valuable time. Thank you to all.